Hey guys, I'm Dr. Pushpendra Chandra. I just finished my internship from NRS Medical College, Kolkata. Now, you're probably watching this video because you already know that I managed to secure an All India rank of 50 in this year's May INICET and an All India rank of 56 in this year's NEET PG 2023, along with a very busy internship. So I've been receiving a lot of queries about how to study, how to prepare for these exams, along with a very busy internship. And so I thought I'd make a couple of videos to address this issue. I've decided to divide this topic into two videos. This is the first of the two, and in this video, I'll be talking about how you can learn on the job, right? So I've noticed कि एग्जाम में ऐसे काफ़ी MCQs आते हैं जो कि आपके इंटर्नशिप के नॉलेज से आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो. So if you are mindful of certain things during your internship, I feel you can get these questions right guaranteed. Okay, so for the ease of watching, I've divided this video into six broad points, right? So, let's get into it. So, the first point that I would want to mention is that become conversant with the cases that you commonly see as emergencies during your casualty postings. Uh, these cases include cases like acute myocardial infarction, seizures, episodes of hypoglycemia, diabetic ketoacidosis. Okay? It could be hypertensive emergencies and urgencies, right? So जब भी ऐसा केस आता है, so initially as an intern you should observe carefully कि आपके सीनियर्स ये केसेस को कैसे मैनेज करता है, एंड आप जब घर जाओगे it always makes sense to open this topic from your notes and revise this topic, right? That way it will commit to your memory better because you are less likely to forget it after reading if you just seen the management of the case before. Or other things we can do is like when there's a patient of AMI, get a hold of his ECG, look at the electrical changes that have occurred in his ECG, try and identify कौन सा wall affect हुआ है. Suppose आपका सीजर का पेशेंट आ रहा है, तो उसको देखो कि कैसा ड्रग्स दिया जा रहा है, पहले कौन सा ड्रग, फिर क्या क्या दिया जा रहा है, और the general steps surrounding the management. Yeah, so these things are very important. और एक पेशेंट जो you will encounter very frequently in your emergencies is animal bites. तो जब भी आप ऐसे पेशेंट को देखो तो मेक श्योर यू हैव रिवाइज द कैटेगरी ऑफ बाइट्स, ठीक है, कैटेगरी ऑफ एक्सपोजर जिसको कहे जाते हैं, एंड आपको रेबीज और टीटेनस का वैक्सीनेशन का शेड्यूल, इंडिकेशंस, कब रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन देना है, ये सब चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करना है. तो ये सब चीज़ प्लीज़ आपके नोट्स से देख लेना, एंड दिस इज हाउ यू कैन लर्न ऑन द गो. ठीक है. और दूसरा चीज़ होता है कि आप जब सपोज आपका ऑर्थो पोस्टिंग चल रहा है, बहुत सारे पेशेंट आएंगे जो फ्रैक्चर लेके आएंगे, तो तब उनका एक्सरे में ट्राई एंड आइडेंटिफाई दी बोन्स फ्रैक्चर्ड, ठीक है. एंड अपने सीनियर से जस्ट बेसिक मैनेजमेंट देखना कि यार कोविड आया तो कैसे स्लैब लगाए, क्या किए, कैसे रिड्यूस किए, बिकॉज दीज आर वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एज एमसीक्यूज, राइट. सो मूविंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट, प्रोसीडियर्स. एज एन इंटर्न आपको ऐसा बहुत एक्सपोजर मिलेगा बहुत सारे थेरेप्यूटिक प्रोसीडियर्स का, ठीक है. Many of them are basic procedures, right, which you are expected to master, and there will be some advanced procedures which you will be expected to assist your seniors while they are performing. तो ये बेसिक प्रोसीडियर्स हम मान के चलते हैं, जैसे आप आईवी एक्सेस कर रहे हैं, पेरिफेरल आईवी एक्सेस कर रहे हैं, आप वेनी पंक्चर कर रहे हैं सैंपल कलेक्शन के लिए, आप 4Ds कैथेटराइजेशन कर रहे हैं, नेसोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन कर रहे हैं. दीज आर बेसिक प्रोसीडियर्स जो आपको आना चाहिए. ऑल्सो सपोज आप आर्टेरियल ब्लड गैस एस्टिमेशन के लिए आप जो ब्लड कलेक्ट करें, तो ये सब बेसिक चीज़ होता है जो आपको आना चाहिए. और जो कॉम्प्लेक्स चीज़ होता है थोड़ा बहुत, जैसे सपोज सेंट्रल वेन डालना, ट्रेकियोस्टमी करना, सूचरिंग जो आपको सर्जिकल पोस्टिंग से इंटर्न वो भी करते हैं, एंड सपोज आपका गायनी पोस्टिंग चल रहा है तो वहाँ पे एपिसियोटॉमी रिपेयर करना होता है. अगर आपके एक्रामशा रूम में पोस्टिंग है तो वहाँ पे जो पेशेंट्स को इंट्रावीनस मैग्नीशियम देते हैं, तो उसका जो आपको कैसे पता चलता है कि मैग्नीशियम का टॉक्सिसिटी होता है, कैसे डोज चढ़ता है, ये सब चीज़ें, दीज थिंग्स यू शुड रिवाइज फ्रॉम योर नोट्स एंड यू शुड कमिट टू मेमोरी. अब सी प्रोसीडियर जब ये आप करते हो तो ट्राई एंड आस्क योर सीनियर्स की करेक्ट प्रोसीडियर कैसे किया जाता है, टेक्निक कैसा है, उसके इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या होता है, एंड क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, ठीक है. बट हमेशा क्या होता है ना कि ऐसे प्रोसीडियर जब
आप कर रहे हो, हेक्टिक डे चल रहा है, इमरजेंसी हेक्टिक चल रहा है, बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं, तो आपको शायद टाइम ना मिले आपको सीनियर से पूछना, मे बी you're just shy and introverted and that's completely fine. And this brings me to my third point is कि learn to use certain apps which are very useful ऐसे situations. जैसे like I love to use Medscape, which is a free resource, but आप MHD manuals या if your college provides access, आप up to date भी use कर सकते हो. These apps are great because you can just look up all these procedures and learn the correct technique of doing them, the indications, contraindications, जो भी risk हो सकता है. Like for example, आप nasogastric tube डाल रहे हो, तो कैसे estimate करना है कि कितना लेंथ डालना है, पेशेंट का पोजीशन क्या होना चाहिए, आप कैसे कंफर्म करोगे जो हाँ ठीक है, इट हैज रीच्ड इनटू द स्टमक. ये सब चीज़ें बहुत अच्छी से एक्सप्लेन हो रहा है. ठीक है, ये सारे ऐप्स से और मैरो पर्ल्स भी आप यूज़ कर सकते हो, बिकॉज वहाँ से यू गेट पर्ल्स की जो आईवी कैन्यूला आप यूज़ करते हो, तो उसका जो डिफरेंट कलर कोडिंग होता है, उसका फ्लो रेट्स, दीज आर वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एज एमसीक्यूज. Suppose you're doing a urethral catheterization, you're putting in a Foveys. The color coding, the types of Foveys, these are so very important. अगर आपका सर्जिकल पोस्टिंग चल रहा है तो you see different kind of sutures. So the patterns of suturing, the rules of suturing, the composition of the various sutures, their appearance, these things are again very, very important questions, right? So make sure that every time you are doing a peripheral IV access, just take some time, flip over the packet, look at the color, look at the gauge, look at the flow rate, right? And try to commit to memory because you will be doing several of these. And by the end of your internship, आपको ये सब चीज़ याद हो जाएगा अगर every time you just take a second or two to flip over and read the contents once. ठीक है, ये क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है एग्जाम में. ठीक है, ये बहुत इजी है, इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करना पड़ता है, सिर्फ थोड़ा सा हैबिट में शिफ्ट डालना होता है, थोड़ा सा एफर्ट लगाना होता है कि हाँ भाई जब भी कुछ प्रोसीडियर देखा तो मैंने फ़ोन निकाला, मेडस्केप खोला या मैरो पर्ल्स से उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया. ये काफ़ी आपको हेल्प करने वाला है, ये हम गारंटी दे सकते हैं आपको. एंड इसमें आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा है एंड आपको सेटिस्फैक्शन भी आ रहा है कि हाँ भाई आई एम लर्निंग समथिंग ऑन द गो. ठीक है, सो नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट इसकी, दिस इज दैट नाउ यू आर अ डॉक्टर. ठीक है, तो इंटर्नशिप में बहुत क्लरिकल काम होता है एंड कॉन्ट्ररी टू आर एक्सपेक्टेशंस we don't have much of a say in the medical management of a patient. And as you grow up, you realize that's probably for a good reason because you're just starting out. But that does not mean that you are not a part of the clinical team. Okay? It is so important that you take an active interest and be present during the rounds which are given by your consultants. ठीक है, तो आपको rounds में रहना है. राउंड्स में आपका जो कंसल्टेंट है वो जो भी आपका डायग्नोस्टिक प्लान बता रहा है, जो भी मेडिकल मैनेजमेंट का प्लान बता रहा है, उसके बारे में बी अटेंटिव, ट्राई एंड सी हाउ ही इज थिंकिंग अबाउट अप्रोचिंग द केस, राइट. एंड काफ़ी बार होता है कि वेबसाइट पे दे डिस्कस दी CT, ECGs, दी एक्सरेज, है ना, MRIs ऑफ द पेशेंट. तब लुक एट दी फाइंडिंग्स. ठीक है, इफ यू लुकिंग एट अ फाइंडिंग ऑफ अ जो भी उसका CSF का रिपोर्ट आ रहा है, उसका जो एसाइटिक फ्लूइड का रिपोर्ट आ रहा है एंड कैसे आप डायग्नोसिस कर रहे हो, ये किस टाइप का किस कारण हो सकता है, तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये भी आपका MCQs में आता है. तो व्हेनेवर यू हियर दिस डिस्कशन तब आपका माइंड में स्ट्राइक कर गया एंड देन आप घर जाके नोट्स खोल के वही टॉपिक पढ़िए, तो मेरे ख्याल से ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है बिकॉज इससे काफ़ी क्वेश्चन आता है. ठीक है, एंड द अदर थिंग इज जब आपका OT में पोस्टिंग होगा, जब व्हेन यू सी योर सीनियर्स, योर प्रोफेसर्स डूइंग सर्जरीज, बी वेरी माइंडफुल व्हाइल ऑब्जर्विंग कि वो क्या प्रोसीडियर कर रहे हैं, स्टेप्स क्या कर रहे हैं. Look at the instruments they are using, right? Try to learn how different instruments look because these often come as image-based questions, right? The electrosurgical instruments, the normal surgical instruments, these are very important. और patient positioning, ये चीज़ गलती नहीं होना चाहिए एग्जाम में. ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं. इफ यू जस्ट कीप योर आइज एंड ईयर्स ओपन, मेरे ख्याल से आपके लिए ये क्वेश्चन स्कोर करना बहुत इजी होता है. ठीक है, okay, now coming to my fifth point is build a good rapport with your seniors and co-interns. Now, how do you do this? By being sincere in whatever work you've been assigned. ठीक है, nobody likes non-sincere people, right? And अगर आप आपका काम sincerely कर रहे हो, तो your co-interns and seniors are going to love you. And then उससे आपका toxicity अगर जो भी है डिपार्टमेंट में सीनियर से, वो भी बहुत कम हो जाता है. And you are going to enjoy working there a lot more, and they are more likely to teach you important things as well.
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Be sincere, be responsible, learn to be accountable for whatever work that has been assigned. This is going to help you a lot in the future as well. And this brings me to the last and sixth point, जो कि है empathy. Empathize with the patient. ठीक है? Because most of the times you are the point of first contact to a sick patient and their attendants. जब ये वो हॉस्पिटल में आते हैं, आप ही जाते हो ना उनसे मीट करने, वाइटल्स लेने, उनका चीफ कंप्लेन सुनना. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पेशेंट की उनका बात सुनेंगे. ट्राई टू ट्रीट देम विद रेस्पेक्ट, डिग्निटी, लव. ठीक है? जो भी try and help them to the best of your abilities, treat them as human beings, right? Empathizing is very important because उससे आपका एक huge work satisfaction मिल जाएगा. जब पेशेंट आपसे हैप्पी हो, पेशेंट अटेंडेंट आपसे हैप्पी हो, तब आपको खुद एक अंदर से वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन महसूस होने वाला है कि हाँ, आपका रोल जितना भी स्मॉल क्यों ना हो, बट एटलीस्ट यू मेड अ डिफरेंस. ठीक है? एंड ये वर्क सेटिस्फैक्शन दैट विल हेल्प यू पुट इन विद मोर एफर्ट and you'll be able to study more passionately when you get the time. ठीक है? So I think that's it for this video. तो ये वीडियो तो इस बात पे थी कि आप कैसे जॉब पे अर्न कर सकते हैं. After a few days, I'm thinking of releasing a different video कि और भी जो लोग डाउट्स पूछते हैं कि कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे टाइम मैनेज करें, हाउ टू डू एमसीक्यूज, कौन सोर्स से रिवाइज करें इंटर्नशिप में, GTs कब से देना है, रिव्यू करना है, एनालाइज करना है, एंड ऑल्सो दी माइंड सेट विच इज नीडेड फॉर द पेड एग्जाम. ठीक है? और अगर आप लोग चाहो, just let me know in the comments. I'll kind of share how I managed to study during my MBBS years as well. So please do let me know in the comments if you are interested. And अगर आपको इंटर्नशिप का सेकंड पार्ट का वीडियो देखना है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक भी कर दो. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.